हाँ लिख लीजिए, simple average of price relative method. This is the second method of measuring sample index number. Sample index number measure करने के लिए हमारे पास दूसरा मेथड है. It is sample average of price relative method. Generally we call it price relative method. Sample price relative method. Sample average of price relative. इस मेथड में क्या हम करते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस मेथड we first find out price relative for each commodity. We first find out price relative for each commodity. हर एक कमोडिटी के लिए पहले हम प्राइस रिलेटिव निकालते हैं, and then take sample average of all price relatives. Then take sample average of all price relatives. So in this method, we first find out price relative for each commodity. Then we take sample average of all price relatives. So it is the sample average of price relatives of all commodities. Thus, it is sample average of all price relatives of all price relatives of all commodities, of all goods or commodities. So पहला काम हमारा ये होता है इसमें कि हर कमोडिटी के लिए हम प्राइस रिलेटिव निकालते हैं. फिर क्या करते हैं, फिर उन प्राइस रिलेटिव्स की एवरेज हम निकालते हैं. दैट इज सम ऑफ प्राइस रिलेटिव्स ऑफ ऑल कमोडिटीज डिवाइड बाय n. Now the question is, what is price relative? पहले फॉर्मूला लिख लीजिए. इसके लिए फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला इसके लिए है P01, that is index number of current year with reference to base year, is equal to summation of P1 divided by P0 into 100. Summation of P1 divided by P0 into 100 whole divided by n. So what is this P1 divided by P0? It is price relative. It is price relative. It is price relative. Yes. जब हम 100 के साथ इसको मल्टीप्लाई करते हैं, it becomes what? Percentage of price relative. It becomes P1 divided by P0 into 100 becomes percentage of price relative. Price relative की percentage. Yes. So it is very simple. हर एक commodity के लिए हम price relative निकालते हैं. P1 divided by P0 into 100. So percentage price relative जब हम निकालते हैं, उसको हर commodity, जितने भी commodities है उनके price relative को हम total देते हैं, sum करते हैं, फिर divide by n देते हैं. We get price relative method. Index by price relative method. Price index by price index, price relative method. Now the question is, what is price relative? ये price relative क्या है? Price relative आपके सामने है. It is ratio between price in the current year and price in the base year multiplied by 100. Price relative is percentage ratio of a variable in the current year to its base year. A price relative is the percentage ratio
of the value of a variable, of the value of a variable in the current year, to its value in the base year. सिंपल वर्ड्स में हम ये कहेंगे, इन सिंपल वर्ड्स जो आपको याद रहेगा, इट इज रेशियो मीन्स P1 divided by P0. This is ratio. It is ratio between price in the current year and price in the base year. Price in the base year multiplied by 100. वो बन गया percentage price multiplied by 100. So simply आप याद रखिए, it is price in base year divided by price in current year. Price in base year divided by price in current year. P1 divided by P0. This is price relative. Price relative is price in current year divided by price in base year, or ratio between price in current year and price in base year. जब हम 100 लगाते हैं, ये बनता है percentage of price relative. Percentage price relative. Okay. So what is P1 divided by P0 into is price relative. Simply आप याद रखिए, ठीक है? No, what is N? ये N में भूल गया. It is number of commodities. Number of commodities. Commodities कितने? Number of commodity. Yes. तो कल हमने मेथड पढ़ा है, उसमें हमने हर तमाम कमोडिटीज, जितने भी कमोडिटीज हैं, उनके करंट ईयर प्राइस को टोटल किया, बेस ईयर प्राइस को टोटल किया, फिर फार्मूला में लगाया, एंड वी गेट प्राइस इंडेक्स नंबर. दैट वाज सिंपल एग्रीगेटिव मेथड. यस, सिंपल एग्रीगेटिव मेथड में समेशन ऑफ P1 डिवाइड बाय P0 इनटू 100. समेशन ऑफ P1 डिवाइड बाय P0 इनटू 100. यहां हम इसका एवरेज निकालते हैं. इट इज सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव. जहां हम हर कमोडिटी का अलग अलग प्राइस रिलेटिव निकालते हैं, वहां तमाम जो जितने भी कमोडिटीज हैं उनका हम प्राइस रिलेटिव निकालते हैं. यहां अलग अलग हम निकालते हैं. सो दिस इज सिंपल फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द प्राइस इंडेक्स विद द हेल्प ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड. ये हो गया. So we first find out price relative for each commodity, then take simple average of all price relatives, or it is simple average of all price relatives of all commodities, of all goods. अब मैं क्वेश्चन उठाऊंगा, कैलकुलेशन की तरफ हम आएंगे. ये हो गया? यस सर. यस सर. बेसिकली जो ये मैथमेटिकल टूल्स होते हैं, मैथमेटिकल कैलकुलेशन होती है, ये थ्योरी में समझ नहीं आता है उतना. जब हम इनको कैलकुलेट करते हैं तब हमें ज्यादा समझ आता है. जी सर. लिखिए क्वेश्चन. गिवन द फॉलोइंग डेटा, गिवन द फॉलोइंग डेटा using price relative method, price relative method, construct index number 4, construct index number for 2004 taking 1994 as base year. So इसमें करंट ईयर कौन सा है? शाबाश. करंट ईयर कौन सा है और बेस ईयर कौन सा है?
2004 इंडेक्स नंबर 2004 करंट ईयर है, 1994 बेस हाँ, करंट ईयर तो नया साल होता है, जो चलता हुआ साल है। यस सर। प्राइस इन 1994 and price in 2004. ठीक है, जी सर। कमोडिटीज है वीट, घी, खाते हो, मिल्क, जाऊ छो अच्छा है, मिल्क, राइस, शुगर। ठीक है, यस सर। मैं क्या लिखता जी हूँ? सर। यस, डेटा हमें अवेलेबल है, प्राइस ऑफ दीज कमोडिटीज। प्राइस ऑफ व्हीट अवेलेबल है इन 1994 एंड 2004। घी का प्राइस क्या है, मिल्क का प्राइस, व्हीट का प्राइस 100 रुपया था इन 1994, सॉरी व्हीट का प्राइस, घी का प्राइस 8 रुपीज, मिल्क का प्राइस 2 रुपीज, राइस 200 रुपीज एंड शुगर 1 रुपी। 2004 में प्राइसेस इंक्रीज हो गए, व्हीट 100 में था 1994 में, 2004 में 200 में हो गया, ये 8 था 40 में हो गया, 2 था 16 में हो गया, 200 में राइस था पर दिस क्विंटल, इट हैज गॉन टू 800, शुगर का 1 रुपी, इट इज 6 रुपीज। ठीक है, यस सर। कल का मेथड एक था, हम इसको टोटल करते थे, इसको टोटल करते थे, इसको डिवाइड करते थे, इससे इनटू 100 तो हमारा आता था। ये बन गया P0 एंड दिस इज P1। P0 मीन्स प्राइस इन बेस ईयर एंड P1 मीन्स प्राइस इन करंट ईयर। नजर आता है? नजर पाया है? P0, यस सर। P1, दिस इज P0 एंड दिस इज P1, प्राइस इन बेस ईयर एंड प्राइस इन करंट ईयर। हमें यहाँ क्या करना है, हमने अभी डेफिनेशन में लिखा है, मीनिंग में लिखा है कि we first find out price relative for each commodity। हर कमोडिटी के लिए हम पहले प्राइस रिलेटिव निकालते हैं। निकालिए अब प्राइस रिलेटिव ऑफ 2004 taking this in relation to 1994, in relation to 1994। yes, क्या है ये, P1 divided by P0 into 100। नजर आता है? नजर शायम है? साफ शायम? यस सर। निकालिए हर चीज के लिए प्राइस रिलेटिव। P1 डिवाइड बाई P0, P1 क्या है यहाँ 200 डिवाइड बाई P0 क्या है 100 इंटू। यहाँ ये मुझे बताना है कि समझ आ गया या नहीं आ गया। प्रति कुछ चीजों से अलग अलग कड़न प्राइस रिलेटिव, हर चीज के लिए, हर कमोडिटी के लिए अलग अलग से सेपरेटली प्राइस रिलेटिव निकालना है, फाइंड आउट करना है। प्राइस रिलेटिव बराबर होता है P1 डिवाइड बाई P0 इंटू 100, दैट इज और, जिसको हम कहते हैं, हम इसको और भी कहते हैं, और इज इक्वल टू प्राइस रिलेटिव, और इज प्राइस रिलेटिव। तो प्राइस रिलेटिव है P1 200 डिवाइड बाई 100 इंटू 100, 100 खत्म, 200 बन गया प्राइस रिलेटिव। अतः ये दूसरे का 40 डिवाइड बाई 8 इंटू 100, क्या बात, 500 8 1 is 8, 8 5 is 40, ये हो गया 500, इसका प्राइस रिलेटिव आ गया। सबों का समझ आ गया? यस सर। सोलिया सुहेल भट्ट है कोई लिखा है, यस सर। अपना नाम लिखना। बिल्किस, समझ आ गया क्या मैं करता हूँ?
इसी तरह मिल्क के लिए प्राइस रिलेटिव निकालिए 16 डिवाइड बाय 2 into 100 2 1 is 2 250 is 800 800 800 इसी तरह इसका 800 डिवाइड बाय 200 into 100 2 400 400 yes sir 201 is 200 fours 6 divided by 1 into 100 ये हो गया 600 600 अब इसका सम ऑफ प्राइस रिलेटिव दे दीजिए सम ऑफ P1 डिवाइड बाय P0 into 100 इसका सम निकालिए सम ऑफ प्राइस रिलेटिव समेशन ऑफ प्राइस रिलेटिव 5 7 8 गए 15 4 गए 50 Yes, sir, 2500 n क्या है n is equal to 5 n is number of commodities कितने हैं हमारे number of जी सर commodities yes number of commodities commodity अब लगाइए फार्मूला अब देखेंगे हम हमारा इंडेक्स क्या आएगा इंडेक्स के लिए फार्मूला है समेशन ऑफ P1 डिवाइड बाय P0 into 100 अपॉन n बिल्कुल आसान है P01 is equal to ये सारा न्यूमरेटर बन गया 2500 यस ये सारी फार्मूला यहाँ जो न्यूमरेटर में है वो है 500 n तो 5 है डिवाइड बाय 5 so P01 is equal to 500 is index for current year with reference to base year. Okay? इसका मतलब क्या है? रिजल्ट क्या आ गया? There has been कितनी परसेंट एवरेज चेंज कितनी आ गई? एवरेज इंक्रीज इन प्राइसेस क्या कितने हैं? बेस ईयर इंडेक्स क्या होता है? कितना होता है बेस ईयर इंडेक्स? 100 हाँ बेस ईयर इंडेक्स 100 होता है 100 इस 500 को माइनस कर दीजिए 500 माइनस 100 ये हो गया 400 so there has been 400% increase in price yes there has been 400 percentage या इस तरह हम लिखेंगे the average increase in prices is 400% average increase in prices average increase in prices is 400% from 1994 to 2004 94 से 2004 तक 400 एवरेज इंक्रीज 400% एवरेज इंक्रीज आ गई तो जो चीज उस वक्त 1 रुपये में आती थी वो आज 5 रुपये में आ रही है इसका मतलब है 4 रुपये का इजाफा हो गया उस चीज तो नाम तस्मज रुपये 1 रुपये उस एवं सुच आज एवं 5 रुपये that amount to 5 rupees agar 4 rupees walos 4 rupees is huriamse you go t 400% go 4 times increase okay जी सर यस सर अब आपको आएगा ये अगर मैं आपको जी सर दे दूंगा ये अब जब तक क्वेश्चन तयवा करूं बात बिल्कुल आसान सा है बेस ईयर प्राइस करंट ईयर प्राइस आपको दिया जाएगा आपको प्राइस रिलेटिव निकालना है तो प्राइस रिलेटिव काढो बेशुन तू तूफाना करुन कहीं ओके यस सर जी सर हाँ ये हो गया यस सर
लिखिए क्वेश्चन असाइनमेंट के लिए। फाइंड आउट इंडेक्स वैल्यू बाय प्राइस रिलेटिव मेथड। फाइंड आउट इंडेक्स वैल्यू बाय प्राइस रिलेटिव मेथड for the year 2005, 2005 from the following data. ठीक है? जी सर। Yes. Goods, prices in 1994 and prices in 2005. ये है P0, ये है P1. A B C D, A B C D. 8, 10, 15, 20. 8, 10, 15, 20. इस 800 पिन चीज उस ए ये दहन जो 10 में था वो 12 में हो गया, जो 15 में था वो 18 में हो गया, जो 20 में था वो 22 में हो गया। इसका आपको प्राइस रिलेटिव निकालना है। ठीक है? सर। एक ये है, क्या बात है? दूसरा क्वेश्चन आप लिख लीजिए। कंप्यूट अ प्राइस इंडेक्स फॉर फॉलोइंग। कंप्यूट प्राइस इंडेक्स फॉर फॉलोइंग। For following, we have commodities. Question second है ये। दूसरा सवाल है prices in 2001 and prices in 2004. तो हम लिख सकते हैं by price relative method. By price relative method. Yes, by price relative method. Commodities हैं A, B, C, D, E, F. A, B, C, D, E, F. These are commodities. A, B, C, D, A, B, C, D, E, F. 20, 30, 10. 25, 40, 50. 25, 30, 15, 35, 45, 55. तो ये है क्वेश्चन आपके लिए। आप इसको निकालिए प्राइस इंडेक्स। ठीक है? ओके सर। जी सर। इसमें आप अपने लेवल पे इस क्वेश्चन में भी, इस क्वेश्चन में भी, वो कल का मेथड भी फॉर योर ओन अंडरस्टैंडिंग वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब ये जरूरी करना ही करना है, ये आज के लिए असाइनमेंट है। ठीक है? जी सर। तो अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए आप खुद प्रैक्टिस करो घर में, तो ये आप कर लीजिए। हो गया? जी सर। उठाया ये?
जी सर। अब हमारा दूसरा टॉपिक है वेटेड इंडेक्स। ये सैंपल इंडेक्स था, अब हमारा दूसरा है वेटेड इंडेक्स नंबर। तो वेटेड इंडेक्स में भी दो हैं हमारे पास, एक तो प्राइस रिलेटिव मेथड है और है एग्रीगेटिव मेथड। वेटेड एग्रीगेटिव मेथड, वेटेड प्राइस रिलेटिव मेथड एंड वेटेड एग्रीगेटिव मेथड। वो आज उठाएंगे या इतना ही पढ़ेंगे आज? सर आज शायद टाइम हो गया सर, कितना टाइम रह गया? बस हो गया टाइम, 40 मिनट हो सर गए। तो फिर पढ़िए। 35 मिनट हो गए सर, कल- लगभग। 5 मिनट में नहीं हो सकता है, 4-5 नो मिनट सर, में सर तो कल नहीं हो सकता है। सर कल पढ़ेंगे। कल पढ़ेंगे। यस सर। आपको समझ आ गया? ये दो जो कल मेथड मैंने दिखाया, आज मेथड दिखाया, ये सैंपल इंडेक्स के हैं। अब वेटेड जी सर। इंडेक्स पढ़ना है। वेटेड इंडेक्स के भी दो हैं, एक तो प्राइस रिलेटिव मेथड उसका भी है और एग्रीगेटिव मेथड उसका है। एग्रीगेटिव मेथड। हाँ, जी उसके सर। लिए भी प्राइस रिलेटिव मेथड और एग्रीगेटिव मेथड, लेकिन वेट वहां डिफरेंट होगी। यहाँ कमोडिटीज है ना, कमोडिटीज की वेट सेम है। कमोडिटीज की वेट यहाँ नहीं है, वहां एक कॉलम और होगा वेट, दैट इज वेट। वेट होगा वहां पे, प्राइस इन बेस ईयर, प्राइस इन करंट ईयर और वेट होगी। हर कमोडिटी के लिए अलग अलग वेट होगी। दैट इज डिफरेंस बिटवीन दिस मेथड एंड दैट मेथड। वो डिफरेंस है इन दो मेथड, सैंपल इंडेक्स और वेटेड इंडेक्स में। ये डिफरेंस है, जहां वेट सेम है कमोडिटीज की, वहां से वेट सेम नहीं है, वहां वेट डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल, एक Different. कमोडिटी के लिए अलग वेट है, दूसरे के लिए अलग वेट है, तीसरे के लिए अलग वेट है, अकॉर्डिंग टू इम्पोर्टेंस। इम्पोर्टेंट कितनी है या उसकी कितनी डीलिंग हो रही है मार्केट में, एक्सपेंडिचर उस पर कितना खर्च हो रहा है, बहुत से पैरामीटर्स उसके लिए है वेट देने के लिए। वो हमें उसके साथ हमें कुछ नहीं है, लेकिन आपको वेट दी जाएगी, कमोडिटीज की वेट दी जाएगी और आपको कैलकुलेट करना है ये इंडेक्स नंबर। ओके? जी सर। और कोई प्रॉब्लम? नो सर। अब ये दोनों मेथड आसान है ना? जी सर। सैंपल इंडेक्स के लिए दोनों मेथड हैं। एक मेथड ये है समेशन P1 डिवाइड बाय, क्या था कल की फार्मूला? समेशन P1 डिवाइड बाय समेशन P0 इनटू 100। एक फार्मूला ये थी, दूसरी फार्मूला ये है प्राइस रिलेटिव। ये था जी सर। सैंपल एवरेज है ना, सैंपल एग्रीगेटिव मेथड। ये था सैंपल एग्रीगेटिव मेथड, ये है प्राइस रिलेटिव मेथड। इसमें हम समेशन P1 डिवाइड बाय P0 इनटू 100 डिवाइड बाय n। यस, जो इस वक्त हम कर रहे हैं, समेशन P1 डिवाइड बाय P0 इनटू 100 डिवाइड बाय n। सो दीज आर टू मेथड्स फॉर सैंपल इंडेक्स नंबर। तो कल हम पढ़ेंगे, टुमारो वी विल इंशाल्लाह डिस्कस वेटेड इंडेक्स नंबर, जिसके दो मेथड्स हैं, वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड एंड वेटेड एग्रीगेटिव मेथड। ठीक है? यस सर। थैंक यू, जी सर। थैंक यू वेरी मच। ओके सर अल्लाह हाफिज। सर अल्लाह हाफिज।